On the night of May 9th and 10th, the western part of the country faced a glowing sky. Swarm after swarm, swarm after swarm. Under Operation Sindoor, India witnessed a huge swarms of drones from Pakistan. ठीक है? So in this video, we are going to discuss about what are swarm drones और इंडिया का preparedness क्या है with respect to swarm drones in terms of counter attack and in terms of manufacturing of drones in India as well. ठीक है? Hello and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss and understand about drones and swarm drones. So let's begin our video with a quick understanding of कि कहाँ ये drones का यूज किया गया है. ठीक है? If we talk about past 5 to 7 years, last 5-7 years में इंडिया वर्ल्ड ने जितने भी wars देखे हों, more or less सभी जगहों पर drones का यूज हुआ था. It has been used very commonly. But one place where swarm drones came into significant importance was the Operation Spider's Web of Ukraine. So if we talk about the drone attack were carried out by Houthi rebels in Yemen, Houthi rebels जो यमन में थे, they were carrying an attack on the Gulf of Aden and the Strait of Bab el-Mandeb. इसमें इंडिया के भी कुछ ships damage हुए थे, but apart from them, it was also a Ukrainian population who have used, Ukrainian military who have used the swarm drone attack. ठीक है? And of course, we have also witnessed on the night of May 9th and 10th, India had witnessed swarm drone attacks from Pakistan. ठीक है? तो जो ड्रोन्स हम लोगों ने पाकिस्तान से एनकाउंटर किए, these were very light drones, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं थी इनमें. But one thing which was very unique to the drones that were used by Ukrainian military in Russia was this, कि under the Operation Spider's Web, Ukrainian military had carried a truck full load of drones. एक ट्रक में ड्रोन्स भर लिए और रशिया में बहुत इंटीरियर लोकेशंस पर उनके एयर बेसिस पे जाके वो स्वॉर्म ड्रोन्स का अटैक किया. ठीक है? सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी अनप्रिपेयर्ड एंड दैट लेड टू almost the damage of $7 billion का लॉस हुआ टू रशिया. ठीक है? so far we have understood this fact कि ओवरऑल ड्रोन्स का यूजेज जो डिफरेंट वॉरफेयर्स में किया जा रहा है, that puts that country having an upper hand. ठीक है? अब जो ऑपोजिट साइड में कंट्री खड़ी है उसकी काउंटर अटैकिंग कैपेबिलिटी हाई होनी चाहिए और एडिशनली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वी शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स. ठीक है? सो दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स वेयर इन इट इज शोइंग कि कौन-कौन से कंट्रीज अभी ऐसे हैं which are making use of drones in military warfare. So we can see there are so many African nations, some of the European nations, and of course one major Asian nation, that's Russia. These countries are very well prepared to use drones in their military positions. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के लिए ये समझते हैं कि ड्रोन्स क्या होते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी बैकडेटेड टॉपिक, बट फॉर जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ड्रोन्स क्या होते हैं कि these are unmanned aerial vehicles है, so because that is why they will remain in air and unmanned होते हैं. तो अगर मान लीजिए किसी तरीके के ड्रोन्स को डैमेज होता है तो इट इज नॉट अ लॉस ऑफ लाइफ. इट विल बी अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर श्योर, बट इट विल नॉट बी लॉस ऑफ लाइफ. और किसी भी कंट्री, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जब वॉरफेयर में इंगेज होती है तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइफ लॉस्ट, दैट डिटरमाइंस कि वो कंट्री जीती है या हारी है. सो यूएवीज का जो इन्वेंशन है ना, ये बहुत रिमार्केबल इन्वेंशन है टू पुट अ कंट्री एट अ विनिंग पोजीशन. So you don't need to take the risk of sending a human being cross the border और वहां जाकर के अटैक करें. You can simply send a UAV. ठीक है? और commonly known as drones. ठीक है? अब ये जो drones होते हैं ये 4 basic types के होते हैं. ठीक है? They can have a multi-rotor. Multi-rotor मतलब बहुत सारे ऊपर में फैंस लगे होंगे और वर्टिकल अपलिफ्टिंग किया जा सकता है. They can have a multi-rotor. There can be a multi-rotor drones. Or there can be a single rotor drone also. A single rotor drone looks very much similar to a helicopter. ठीक है? अब अगर हम लोग ये दोनों कैपेबिलिटीज को मिला दें तो इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं. व्हाट आर द ऑप्शंस? एक ऑप्शन है फिक्स्ड विंग के साथ मल्टी रोटर कर लीजिए. सो दीज ड्रोन्स आर नोन एज फिक्स्ड विंग मल्टी रोटर ड्रोन्स और अदरवाइज फ्लेक्सिबल विंग मल्टी रोटर ड्रोन्स.
सो ये जो हम लोग उरी अटैक में यूज किए थे, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लेक्सिबल विंग ड्रोन, ठीक है। So these are some of the basic types of drones. Now talking about the history of the drones. ड्रोन्स को सबसे पहले कब यूज किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और इवन ड्यूरिंग द कोरियन वॉर ड्रोन्स वाज यूज्ड। बट उस समय के जो ड्रोन्स थे, दे वर नॉट यूज्ड फॉर अटैकिंग, वो सिर्फ स्पाइंग के लिए, एस्पिनेज के पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद आता है गल्फ वॉर। गल्फ वॉर में सबसे पहली बार ड्रोन्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया था। इन द गल्फ वॉर ऑफ 1991 between Iraq and Iran, a lot many number of drones were used. बट इससे भी ज्यादा आता है 2020 का अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया का जो अटैक था। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा ड्रोन्स यूज किए गए थे। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट recent and the most dangerous one, I should call this, is the Ukrainian military use of swarms of drones under its Operation Spider's Web, जिसमें कि उन्होंने रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रशियन एयर बेसिस को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किए थे थ्रू दीज स्वॉर्म ड्रोन्स, ठीक है। सो ये तो था, वी अंडरस्टूड व्हाट आर ड्रोन्स, वी आल्सो अंडरस्टूड कि ड्रोन्स किस किस तरीके के हो सकते हैं अभी तक, ठीक है। नाउ वी स्पोक अबाउट कि अभी तक ड्रोन्स को कहां कहां यूज किया गया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ड्रोन्स, ठीक है। बट नाउ कमिंग टू द कोर टॉपिक कि स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं और स्वॉर्म ड्रोन्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, इनके काउंटर एक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जैसा स्वॉर्म एज द नेम सजेस्ट कि इंग्लिश में तो हमें यही पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आते हैं, बट इट इज नॉट जस्ट द इंग्लिश टर्म, इट इज ऑल्सो हैविंग अ फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉर्म इज स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फ़िगर्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि दिस इज एन एरे ऑफ रिकॉन्फ़िगर्ड मॉड्यूल्स। एरे मतलब हम लोग बैक टू बैक एक क्लस्टर ऑफ ड्रोन्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो ड्रोन्स होते हैं, इनमें सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है मतलब जैसे ही ये एयर में पहुंचेंगे, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन पर होते हैं। इंटरैक्शन चलते रहती है स्वॉर्म ड्रोन्स की एक दूसरे के बीच में। दे एस्टैब्लिश अ नेटवर्क इन एयर, और उसके हिसाब से कोहेशन भी बिल्ड किए रहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक ड्रोन चला गया, तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल अगेन रीअलाइन देमसेल्व्स एंड अगेन कंटिन्यू टू फाइट। फिर उसमें से एक ड्रोन अगर चला गया, दे विल अगेन रीअलाइन देमसेल्व्स एंड कंटिन्यू टू फाइट। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ स्वॉर्म ड्रोन, और दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं वो तीन बेसिक तरीके के हो सकते हैं। एक जो कि एक सेंट्रल सिस्टम सारे ही ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान वाज यूजिंग। पाकिस्तान वाज यूजिंग अ सेंट्रलाइज्ड ड्रोन आफ्टर ड्रोन, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कंट्रोल हो रहे थे, ठीक है। बट इसके अलावा इट कैन बी अ सेमी ऑटोनोमस डिसेंट्रलाइज्ड में सेमी ऑटोनोमस हो सकते हैं। तो तब ये कैसे काम करेगा, हब एंड स्पोक्स, और जो हब्स हैं दे विल बी कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी हब्स होंगे दे विल बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सिस्टम, और हर एक हब और अपने स्पोक्स के साथ कनेक्टेड होगा। दिस इज नोन एज अ डिसेंट्रलाइज्ड सेमी ऑटोनोमस सिस्टम। बट कुछ जो फॉर एग्जांपल यूक्रेन हैज यूज्ड इन ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, और फॉर दैट मैटर ईरान हैज आल्सो बिल्ड सच कंप्लीटली ऑटोनोमस डिसेंट्रलाइज्ड स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। ये कैसे काम करते हैं कि इनको किसी भी सेंट्रल ग्राउंड स्टेशन की जरूरत नहीं होती है। ये कंप्लीटली ऑटोनोमस अपलिफ्ट करते हैं, कंप्लीटली ऑटोनोमस लैंडिंग भी करेंगे, और इनके अपने बीच का कम्युनिकेशन भी, एवरी ड्रोन इज कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो होते हैं, these are completely most, I would say, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, सबसे ज्यादा improvised form of swarm drones होते हैं, ठीक है। These are armed fully autonomous drone swarms. Now, अब इससे ज्यादा वर्ल्ड इससे आगे भी बढ़ रही है। So as we discussed कि कुछ कंट्रीज के पास, very few countries in fact have this example of completely decentralized autonomous swarm drones. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं that they are developing lethal autonomous weapon system, also known as LAWS, lethal autonomous weapon system, ठीक है। अब lethal autonomous weapon system is not restricted to drones. ये वैसे weapons होते हैं जो अपने आप ही डिसीजन भी ले सकते हैं। लेट्स से कि वो एक ऐसा टैंकर है
जो एनिमी की टेरिटरी में गया उसे पता है कि जहां उसे एनिमी दिखेगा उसे शूट कर देना है, ठीक है, और अगर एनिमी नहीं दिखेगा तो वो वापस आ जाएगा। अगर लेट्स से एक डिस्टेंस तक नहीं गया मिला एनिमी तो उसे और आगे जाना है। ये सारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज उस वेपन में आ जाए, दिस इज नोन एज अ लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। अब नाउ यू इंटीग्रेट अ लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम टू अ ड्रोन, ठीक है, तो अब ये कैसा दिखाई देगा, ये एक ड्रोन होगा जिसके पास एक अटैकिंग कैपेबिलिटी होगी, और वो अटैकिंग कैपेबिलिटी को यूज करना है कि नहीं करना है, वेदर यू हैव फाउंड एन एनिमी और अ फ्रेंड, वो डिसीजन वो ड्रोन ही ले रहा है, एंड देन टेकिंग डिसाइडिंग अपॉन समथिंग एंड कैरिंग आउट एन अटैक। दिस इज व्हाट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ लॉज टू अ ड्रोन्स, दैट इज लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को जब हम लोग ड्रोन के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी उस ड्रोन के साथ दे देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वर्ल्ड इज डेवलपिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग अप टू। लेकिन इसमें इंडिया का प्रिपेयर्डनेस अगर देखा जाए कि हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसा है, कि अगर मान लेते हैं इस तरीके का जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया, इसमें हम लोग किस हद तक के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक है। सो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जो ड्रोन्स का अटैक पाकिस्तान ने किया ये बहुत ही लाइट वेट थे, और ऐसे सिचुएशन में सरफेस टू एयर मिसाइल्स का यूज करना दिस इज नोवेयर अ करेक्ट डिसीजन। कोई बिल्कुल भी ये अपने साउंड स्टेट में बिल्कुल नहीं डिसाइड करेगा कि इस तरीके के छोटे ड्रोन्स के लिए आई विल मेक यूज ऑफ अ मिसाइल, जो कि बहुत ही कॉस्टली अफेयर होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी आर यूजिंग, वी हैव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, और ये क्या करते हैं कि हम लोग, ये आप समझ सकते हो कि दीज आर बॉल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो जहां भी स्वॉर्म ड्रोन्स हैं वहां पे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जाकर के उस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेंगे और उस स्वॉर्म को किल कर देंगे, मतलब उसे अटैक करने की कैपेबिलिटी से कम कर देंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वी एंगेज विद द नेटवर्क ऑफ दीस स्वॉर्म ड्रोन्स। जैसे हम लोगों ने देखा डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ग्राउंड स्टेशन से यूजुअली अटैचमेंट रहता है, तो जब आप ग्राउंड स्टेशन से उसकी कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर दोगे, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो अब स्वॉर्म ड्रोन्स हवा में तो है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि किधर जाना है या किसे अटैक करना है, ठीक है। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक करके हम लोग उस ग्राउंड स्टेशन पे या स्वॉर्म ड्रोन्स के ही नेटवर्क को डिस्टेबलाइज कर दे सकते हैं, एंड इन दैट केस अगेन बिकॉज दैट इंटरैक्शन, दैट कोहेशन बिटवीन द स्वॉर्म ड्रोन्स इज ब्रोकन, तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज स्पूफिंग। स्पूफिंग कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं स्वॉर्म ड्रोन को पता है कि उन्हें 4 किलोमीटर के टेरिटरी पे जाके अटैक करना है, ठीक है, तो आप उन्हें रीडायरेक्ट कर दो कि आप इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाकर के अटैक कर दो। सो यू आर डिसीविंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर डेस्टिनेशन, दैट इज नोन एज स्पूफिंग, ठीक है। तो अगर आप स्वॉर्म ड्रोन्स को थ्रू सम मींस, साइबर अटैक के या किसी मींस के साथ स्वॉर्म ड्रोन्स के डेस्टिनेशन को ही चेंज कर देते हो, दैट इज आल्सो हाउ वी काउंटरैक्ट टू स्वॉर्म ड्रोन्स, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज स्पूफिंग। या फिर इंटरसेप्टर ड्रोन्स जो हम लोगों ने यूज किया, दैट वाज मोस्ट कॉमनली इंटरसेप्टर ड्रोन्स, कि अगर आप एक ड्रोन अटैक कर रहे हो तो हम दूसरे ड्रोन्स को भेजेंगे, ये आपको हवा में, ये उस ड्रोन को हवा में ही मार देंगे। But last option, this is what India is exploring, कि we need to buy CRAMs. What is CRAM? CRAM stands for countering rockets, artillery and mortar. काउंटरिंग ये एक बहुत ही ऑटोनोमस सिस्टम होता है। अगेन यू डोंट नीड ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर दिस। जैसे ही एनिमी टेरिटरी से स्वॉर्म ड्रोन्स का अटैक होने लगेगा ना, तो रिटालिएशन पे हम लोग किसी भी तरीके के रॉकेट्स या आर्टिलरी या मॉर्टर को रिटालिएट कर सकते हैं, मतलब वी विल बी एबल टू रिटालिएट एंड किल दोज ड्रोन्स इन एयर इटसेल्फ। दैट इज व्हाट अ CRAM डज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो दिस वी कॉल एज ऑटोनोमस सिस्टम। आप अगर उधर से ड्रोन लॉन्च करोगे तो आई विल एक्टिवेट माई CRAM और CRAM सारे ड्रोन्स को वैसे ही मार देगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इंडिया इज एक्सप्लोरिंग टू बाई फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियाज ड्रोन प्रिपेयर्डनेस, एज वी डिस्कस्ड कि हमारा जो रिटेलिएटरी एक्शन होना चाहिए था पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, ये दो डायरेक्शन में होना था। One is how are we going to prepare ourselves if an enemy causes an attack, creates an attack of swarm drones। तो ये काउंटर अटैक के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर ये काउंटर अटैक नहीं हो तो हमारे पास ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो अभी तक हम लोगों ने ये सारे ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, या फिर ये हमारा आई वुड से दिस इज एन ऑल्सो एन एयर डिफेंस सिस्टम। दिस इज आकाश तीर। आकाश तीर ऑल्सो वी हैव यूज्ड सिग्निफिकेंटली इन ऑपरेशन सिंदूर।
आकाश तीर इज कंप्लीटली इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड. सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश तीर को बनाया है. दिस इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम. तो एज वी डिस्कस कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है. तो अगर आपके ड्रोन का अटैक होगा तो वी विल बी एबल टू इजीली रिटेलिएट. ठीक है. सेकेंडली, दिस इज इंटीग्रेटेड विद एयरफोर्स इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क. तो हमारे एयरफोर्स का जो इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क है, जो नेटवर्क है हम लोगों ने एयर में इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, उससे आकाश तीर को इंटीग्रेट कर दिया गया है. तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन इन केस ऑफ एनी अटैक. ड्रोन अटैक भी उसी में आ जाएगा. ठीक है. दैट इज वन ऑप्शन दैट वी हैव. द सेकेंड ऑप्शन इज भार्गव अस्त्र. भार्गव अस्त्र क्या है कि अगर आप उस एनिमी की टेरिटरी से अगर कोई ड्रोन अटैक होता है, स्वॉर्म ड्रोन अटैक होता है, तो भार्गव अस्त्र हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग 64 माइक्रो रॉकेट्स पर आवर. 64 माइक्रो रॉकेट्स पर आवर के बेसिस पे वी विल बी एबल टू किल डाउन, शूट डाउन द एनिमी ड्रोन्स. ठीक है. हम लोग रॉकेट्स लॉन्च करेंगे और वो जाके एनिमी के ड्रोन को शूट डाउन कर देगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव एन एंटी ड्रोन सिस्टम. एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये हम लोग नेवी में इंडक्ट कर चुके हैं. दिस हैज बीन इंडक्टेड इनटू नेवी एंड इसके पास कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये 360 डिग्री रडार होल्ड करता है. 360 डिग्री रडार मतलब किसी भी साइड से अगर मान लेते हैं कि अटैक होता है, एरियल अटैक होता है, तो दिस एयर ड्रोन सिस्टम विल बी एबल टू प्रोटेक्ट अस. कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इसके पास दो ऑप्शन है. वन इज सॉफ्ट किल. सॉफ्ट किल मतलब वो जैम कर देगा और फिर ड्रोन्स को पता ही नहीं है कि किधर जाना है. दैट इज वन ऑप्शन. और हार्ड किल, दैट इज अनदर ऑप्शन कि हम लोग रिटेलिएशन में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दें. ठीक है. डिटेक्शन कैपेबिलिटी क्या है इसकी? 4 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है एंड एज सून एज दे कम 1 किलोमीटर इन द रेंज ऑफ दिस एंटी ड्रोन सिस्टम, तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू इंद्रजाल. इंद्रजाल जो है ये हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है. दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन द ड्रोन सेगमेंट. ये क्या है कि एआई को इंडक्ट किया गया है. सो दिस मशीन कैन डिसाइड ऑन इट्स ओन. प्लस इसमें जैमर्स और स्पूफर्स भी ऐड किए गए हैं. तो इसका मतलब जब आप इस ड्रोन को लॉन्च करते हो, ये दिस ड्रोन कैन स्पूफ अदर स्वॉर्म ड्रोन्स. मतलब ये क्या करेगा? ये ड्रोन बाकी सारे स्वॉर्म ड्रोन्स को बोलेगा कि देखो आपको लेफ्ट में नहीं जाके अटैक करने की जरूरत है, राइट में जाके अटैक करने की जरूरत है. डेस्टिनेशन चेंज कर देगा ऑफ द स्वॉर्म ड्रोन्स. तो दिस इज व्हाट इज एन इंद्रजाल. इंद्रजाल इज अ ड्रोन which will spoof other swarm drones. That is one option. या अदरवाइज जैमिंग भी कर सकता है. ठीक है. और ये सारा डिसीजन कि उसे जैमिंग करना है या स्पूफिंग करना है या डिस्ट्रॉय करना है, ये सारा डिसीजन वो खुद ही ले लेगा. दिस इज व्हाट इज इंद्रजाल. ठीक है. सो दिस इज इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स preparedness in manufacturing of drones, and we also discussed about India's preparedness in countering the drone attack. So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.